Yes, I'm going to start now, okay? Yesterday I had given ideas of the relation that is the subset of Cartesian product of two sets A and B. We have done a lot of conceptual idea on Cartesian product. Also, we have seen the domain, codomain, and range. Just to memorize that fact, I have taken some of the problems here. There are 5 in numbers. These problems you will do yourself. I am supplying hint only, right? I am just supplying hint. Is it audible? सुनाई पड़ रहा है सबको? Yes, sir. सुनाई पड़ रहा है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So let us see. The problems which I had taken yesterday. At the same time, I had given caution, एक तरह से चेतावनी थी कि जो टॉपिक डील कर रहे हैं हम, ये बहुत गहराई की ओर ले जाता है. And this needs lot of concept and understanding. So just I am explaining the fact in a very systematic and what is called informative manner. That's why I plan to explain all these problems, 5 problems. Later, you will do these problems yourself and just show your complete work to me. I'll give hint how to do that, and after that, let us see. First is the case, there are some problem that you know how to deal with. The first one, let A is the set having element 1, 2, 3, 4. B is another set having element 5, 7, 9. Our question is to find determine A cross B, that is Cartesian product of A and B, and Cartesian product of B and A. Will you do it now? क्या आप कर सकते हैं इसको? Yes, sir. Yes. तो बताने की जरूरत है कि नहीं है? छोड़ दें, जैसा बताइए. Yes, sir. We can do it. Should I leave? No? No problem. Yes. आप कर लेंगे, है ना? तो determine A cross B and B cross A. एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, A cross B में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा 1, 5, 1, 7, 1, 9. Every element of set A will be related with the elements of set B. In case of B cross A, 5 to 1, 5 to 2, 5 to 3, and 5 to 4, so on and so forth. This is in terms of order B. Now the third part is A cross B is equal to B cross A. We have seen this situation in my real lecture, that A cross B never be equal to B cross A because the order pair are not same. For example, if in one case the order pair is 1, 5, but in another case the order pair is 5, 1. So 1, 5 is not equal to 1, 5, 1 because 1 is not equal to 5 and 5 is not equal to 1. So this situation is not possible. Fourth one, is number of A cross B is equal to number of B cross A? Yes, it is possible. The cardinal number of the Cartesian product of the two sets A and B is same as cardinal number of the Cartesian product of set B and A. So this is possible. So this you will do yourself. I'm ready now. Let us see one by one. Now the second question. Find X and Y if this condition holds. First is Sir, second. board is not visible. Not visible. Yes, sir. Oh, okay. Next time come to that. It is not visible.
Is it Now it is visible or not? visible. Just I'm reading it. Is it clear? Yes, sir. It's clear now. Clear? Yes, sir. Yes, let us see. I'm reading it. Find x and y if first order pair contain 4x plus 3y and the second order pair contain 3x plus 5 comma minus 2. These two order pairs are equal. The situation is already known to you. So I hope that you can also do it. Is it okay? You can do it. Just I'm giving the situation here. Because these two order pairs are equal, it is given. So the first entry are equal to first entry. That means 2 first. Hint only. 4x plus 3 is equal to 3x plus 5. And find x from here. Find x. Now in the second order pair y, here it is minus 2. So y is equal to minus 2. So our question is to find the value of x and y. The approach is very simple that you know. So let us move to another question. Second, same condition. X minus y is equal to 6. X plus y is equal to 10. So these two questions you can do yourself. By the logic, when two order pairs are equal, then the entries are same. First entry is same. First entry of the first order pair is same as first entry of the second order pair. Second entry of the first order pair is same as second entry of the second order pair. So this you can do also. Now let us see third one. First, second, and third. Let us see third. The third question is find the domain. Find the domain and range. Do you follow it? Question number 3. Just give your response. Yes, sir. Find the domain and range, right? Now domain and range stand for this is the relation R. Relation R is what? Order pair x, y such that y is equal to 6 plus, y is equal to x plus 6 by x, comma, x, comma, y belongs to n and x less than 6. So, our question is to find domain and range. Domain and range. These two things you have to find out. So let us see. Now, whenever our question is to find the domain and range, let us see the situation of relation R. Let us prepare all the order pair of relation R. Is it clear? Relation R के सारे order pair को आप लिखिए. Clear है? Yes, sir. हाँ, relation R के order pair कैसे लिखेंगे इसको आप देखिए. आपका क्या सिचुएशन है? ये रिलेशन है सिंपल रिलेशन y is equal to x plus 6 by x. x और y दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और x क्या है 6 से कम है 6 से कम है. तो आप पहले x को लिख लीजिए 1 2 3 4 5. Since 6 is less than 6, so it's right. X is 1 2 3 4 5. Let us find accordingly y. So y is equal to x plus 6 by x. Now, in the first case, y is 1. In place of x, 1. 1 plus 6 by 1, that is 7. Clear?
So what is the first element? 1, 7. Similarly, 2. When x is 2, 2 plus, so y is equal to what? 2 plus 6 by 2. 6 by 2 is what? 2 plus 5. 3. And this is what? 5. What is the order pair? 5. Is it clear? Yes, sir. Clear? Let us see. Similarly, third. x3. So 3 plus y is equal to 3 plus 6 by 3. 3 plus 2. This is also 5. X is 3. Then 3 plus 6 by 3. That is 2. That is 5. So the second next order pair is 3 and 5. So let us make horizontalize so that it can be bifurcated. Yes. Let us see 4. When x is 4, y is equal to 4 plus 6 by 4. When x is 4, because 4 is will also come, x is 4, y is equal to 4 plus 6 by 4. Now just you observe it here, that is divide by 2. 2 3 is 6, 2 2 is 4. And this is 4 plus 3 by 2. Now, will the image of 4 will obtain? क्या 4 का इमेज मिल रहा है? इस सिचुएशन में क्या 4 का इमेज मिल रहा है? स्पीक आउट. क्या 4 का इमेज मिल रहा है? That is 11 by 2. हम कह रहे हैं कि 4 का इमेज क्या मिल रहा है? 4 plus 3 by 2 यानी 5.1. 3 by 2 का मतलब हुआ 1.5. So 4 plus 1.5, 5.1. क्या y नेचुरल नंबर है? No, sir. Is y नेचुरल नंबर? क्या y नेचुरल नंबर है? No, sir. No. Yes. So this will not come. So 4 will not be the image of that. So this is not becoming under the relation because it is given condition that y is also natural number. So be cautious in writing everything. Similarly, in case of 5, 5 plus 6 by 5. Again, 6 by 5 is not a whole number. So this will not be coming. So the images are coming like this. Let us write down all the elements of relation. I shall write, this will write like this. Relation R is 1 is having image 7. 2 is having image 5. 3 is having image 5. 4 is not having image and 5 is also not having image. I hope it is clear. So these are the 3 order pairs. These 3 order pairs only will come under the relation. Clear? Now my question, another part is find the domain and range. So let us write down domain. So domain of R is equal to all entry of the first order pair. First entry of the order pairs. So first entry of the first order pair is 1, then 2, then 3. So in domain, only 1, 2, 3 will come. Now come to the range. Range means the image which is obtained for this. So range are 7, 5, and 5. No need of writing 5 twice. So that's right in order. This is 5 and 7. So I hope this question become clear now. Okay, is it clear? Let us see. So this is the domain and range. Now come to the next question 4.
This question 4 is this question 4 is let R be a relation on N. R be a relation on N defined by this. R is relation on N. R is relation on N. R is relation on N defined by this condition. R is equal to order equal A B such that A comma B belongs to N and A is equal to B square. So this is the situation here. R is a relation on N. That means N is the set of natural number. So all elements of natural number will come. What is the condition here? Order pair A B such that A and B belongs to N and A is equal to B square. In that situation, we shall observe, since A is equal to B square, just go on writing this. A and the second order pair is A is equal to B square and this is B. First condition is that first order pair is B square, second entry of the order pair is B square. Is it clear? फर्स्ट एंट्री हमारा ए है, सेकेंड एंट्री बी है, लेकिन ए और बी में कंडीशन है कि ए बी स्क्वायर के बराबर है. तो ऑर्डर पेयर का नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ ऑर्डर पेयर विल बी बी स्क्वायर एंड बी. दिस इज द नेचर ऑफ ऑर्डर पेयर. अब आप चलिए यहां से देखने के लिए इसको ऑब्जर्व करते रहिए. जस्ट ए मिनट. दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. This is not fully written. What this is demanding from us, let us see once again. Let us verify this question, because the question is, are your relation on A yes, let us see. Because the question is incomplete, so I will write the complete question here. After that, we shall discuss here. Okay, I will search it later. The question is very simple. Let R be a relation on N defined by this. Find domain and range. Domain and range. This question is similar to that question. Oh, sorry. This question is complete. How it is complete? Let R be relation on N defined by R equal to this. R be following true. ये समझ रहे हो आप? क्वेश्चन समझ रहे हो? इसके बाद का हमारा जो सिचुएशन है वो है कि जब ये कंडीशन है तो क्या ये रिलेशन ट्रू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको देखना है. क्या आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन कह रहा है? Yes, sir. Out. प्राची, प्रियांशु. Yes, sir. Yes. Let us see. The question is complete here. Let R be a relation on N defined by R is equal to order pair AB such that A comma B belongs to N and A is equal to B square. Are the following true? क्या ये सही है? इसको चेक करना है.
इसको चेक हमको कहां से करना है? तो यहां से करना है। तो अच्छा है, हम इसको वेरीफाई कर लिए। आर रिलेशन ऑन एन है, आर ए बी है, इस तरह से ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री का स्क्वायर है। माने ऑर्डर पे क्या एलिमेंट ऐसा होगा। अब चलिए फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट में क्या है कि क्या ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बिलोंग्स टू एन, इसको आपको चेक करना है। आप जल्दी से हमको सोच के बताओ कि क्या ये सही है या गलत है, जल्दी बताइए। सर गलत इज है। इट राइट और रॉन्ग? सर इट्स रॉन्ग। Yes, very good. It is wrong because Sir, wrong है, the wrong, second wrong. first entry is the square of second entry. So the situation will change. This will be a square a belongs to R. As per this rule, belongs to R. But the situation is that a square a belongs to R. इसका मतलब है हमारा कि a b स्क्वायर बराबर है। यहां ध्यान रखिए कि रिलेशन सिर्फ यही कंडीशन दिया है। एक मिनट थोड़ा चेक करना है। आर दी फॉलोइंग टू ए बिलोंग्स टू आर, तो हम तुरंत कह रहे हैं कि चूंकि ए इसे बिलोंग नहीं करता है, चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं बी की जगह ए करते हैं तो गलत है, क्योंकि बी की जगह क्या है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं हो सकता। ए नेवर बी इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर इट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये ए स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। समझ गए? जस्टिफिकेशन पूरी तरह से देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ मॉडिफाई नहीं करना आपको है। आपको यहाँ सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि क्या कहां ले जा रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम सेकंड में आएंगे। आप सेकंड देखिए, क्या कह रहा है कि ए बी आर के मेंबर है, तो क्या बी ए बी होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। जल्दी से करके बताइए कि यह सही है गलत है? ये सही है कि गलत है? आप कैलकुलेट करके चेक करके बताओ कि सही गलत है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, ए बी स्क्वायर के बराबर है। ए स्टैंड फॉर द फर्स्ट एंट्री, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बताइए हो पाएगा क्या? I think it's wrong. Wrong. Same conditions holds because AB stand for what? Wrong. B square B. B square B, यहाँ जब B square B होगा तो यहाँ वो नहीं हो पाएगा। एक को मॉडिफाई करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ देखना पड़ेगा। B स्क्वायर यहाँ होगा, यहाँ B होगा, यहाँ B है और यहाँ B स्क्वायर है, तो B स्क्वायर बराबर नहीं होता। So this is also false. Again, come to the another condition. सेकंड कंडीशन में आई, थर्ड कंडीशन सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बीसी यदि ए बी आर के मेंबर है और बीसी आर का मेंबर है तो क्या एसी आर का मेंबर होगा? यदि ए बी आर के मेंबर है, बीसी आर का मेंबर है तो क्या एसी आर का मेंबर होगा? आप इसको कर सकते हो ना? स्पीक आउट नाउ, कैन यू डू इट? Yes, sir. हाँ, आप इसको कर लेना, क्योंकि हम जो कुछ बताने जा रहे हैं यहां से। अब आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, लास्ट क्वेश्चन है। दिस लास्ट क्वेश्चन 5 is coming here in this case. Let me the relation in Z. R जो है क्या है? स्फीयर है। Z हमारा है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। Z is the set of integer. Let R be relation in Z, यानी क्या हो जाएगा?
R is a subset of Z cross Z. जैसा आप जानते हो, ये let R is a relation in Z of all integers defined by x y belongs to R. क्या रिलेशन हमारा है? x y belongs to R implies x minus y is divisible by n. इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए. इस रिलेशन में ये ऑर्डर पे एक्स वाई तभी आएगा जब एक्स माइनस वाई डिविजन बाई एन होगा. ध्यान रखना है, इंटीजर है, यानी एक्स माइनस वाई डिविजन बाई एन. एन हमारा, just a minute, wait, let us verify this question. Because just to explain this, I have just highlighted this question so that it can be made clear to you. So let us have it now. This question is, let us have this question, because let R be a relation in J of all integer divided by this, such that order pair xy belongs to R implies x minus y is divisible by n. Prove that this condition holds. Let us check this question. Yes, this question is correct. I was thinking about n. I was thinking that n should be a number, but no problem. We can take n is a type of number that is not clear, like 2, 3, 4. So let us have it. That means we can write here n divides x minus y. This is the given condition. This is the given condition. Now accordingly, let us check all these conditions. Prove that xx belongs to R. Now if there is question, xx belongs to R, R stand for relation. ध्यान रखना, R क्या है? रिलेशन है जो सेट ऑफ इंटीजर में है. सो xx belongs to R, यानी आपको कैसे चेक करना है? क्या कोई बता सकते हो इसको कैसे चेक करें? हम कैसे प्रूव करें, बता सकते हो आप? थोड़ा सोचो इस पर, कैसे कर सकते हैं? xx belongs to R दिखाना है, प्रूव करना है. यही से लॉजिक है. हम चाहते हैं कि लॉजिकल आइडिया आपकी कोऑपरेशन से आपको बताते चले. हम तो बोल देंगे, लेकिन आपको सोचने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा. इसलिए पहले हम चाहते हैं कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से हम बढ़े. बताइए क्या होगा यहाँ पर, सोचिए थोड़ा. तो प्रियंशु एंड प्राची, इज इट ऑडिबल? क्या सुन रहे हैं आप सर? लोग? अंकित भी आज भी ज्वाइन किया है. आज एक नया बच्चा, नया स्टूडेंट है, अंकित ज्वाइन. अंकित also has joined. Yes, sir. क्या हो Ankit रहा है? is my friend. So Ankit also has joined today. अच्छा, Ankit. अंकित है ज्वाइन. Yeah. Yes, sir. Okay, no problem. That means 3 are joined, huh? Let me check. Yes, sir. Yes.
Ankit, Prachi, and Priyanshu. Okay. Yes, sir. And Ankit, sir, one more Priyanshu, and Manvendra. Prachi. I am telling, Sir, asking one from more all of you. Manvendra. Can you do it? क्या आप इसको कर सकते हो? No, sir. यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है हमारे रिलेशन Sir, it's फंक्शन a में tricky जाने का, one. यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है जहाँ प्रूफिंग टेक्निक जानना चाहते हैं। अभी तक आप लोग प्रूफ कर चुके थे जनरल माने पार्टिकुलर केसेस के चलते, यहाँ एक जनरल कंडीशन है, इसको प्रूफ करना है। तो सोच के बताइए कि क्या कर पाओगे आप। क्या देखना चाहेंगे कि हम बताएं क्या करें? सर आप बताइए। यस ओएम को लगा कुछ प्रॉब्लम आप बताएं जरूर है, क्योंकि हम आपको जो गिवन कंडीशन ले रही, जैसे कि प्रूफ करते थे क्लास 10th में, तो क्या होता था, गिवन कंडीशन होता था, क्या प्रूफ करना है वो भी होता था, आप कैसे प्रूफ करते थे, रीजन देना था। तो आप देखिए गिवन ए है और आपका प्रूफ क्या करना है कि x बिलोंग्स टू r। अब चलिए क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू r, यानी यहाँ y की जगह क्या है बताइए, y की जगह क्या यहाँ पर है, एवरी टाइम यू टू फॉलो इट, इसको फॉलो करना आपको है। टेल मी व्हाट इज इन प्लेस ऑफ y, y की जगह क्या है, n by x minus y. नो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ xy लिया, इसको ध्यान दीजिए, इसको माइंड में रखिए आप, यदि xy r का मेंबर है, तो concentrate here in my statement, xy belongs to r implies x minus y is divisible by n। ये हमारा पूरा लैंग्वेज है, समझ गए? इसी पार्ट को हम लिख करके शॉर्ट में ऐसे करते हैं। अब बताइए कि आपका क्या होगा, y की जगह क्या है, x है। इज इट क्लियर? y की जगह x है। Do you confuse or not? In place of y there is x here. So what you shall write? इसका भाग लिख रहा है, जैसे लिखा है एचडी लिख रहा है, जैसे लिखा है x belongs to r, this implies x minus x is divisible by Y. divisible by n। N. हाँ. अब इस लैंग्वेज को देखकर बताइए कि क्या आप इससे कन्विंस हैं कि नहीं है। x minus x is divisible by y, तो हम कहेंगे it is true because n is whatever number, no problem। यहाँ डिवाइजर में क्या n है और यहाँ क्या है 0। अब समझ गए होंगे, डिवाइजर में n है but in the dividend there is 0, so n divides 0, no problem, है कि नहीं? तो क्या कहेंगे, दिस इज ट्रू। here x belongs to r, since 0 divides 0, 0 is divisible by 0 is divisible by a। इसी लैंग्वेज को आपको मेंशन करना है, प्रूफ हो गया, कोई जरूरत नहीं है लंबा प्रूफ करने के लिए, बहुत सिंपल सा फैक्ट है जिसको आपको दिखाना है, एक एक रीजन देते चलना है। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या था, यहाँ टर्निंग पॉइंट था कि यदि आप x रख रहे हैं तो y की जगह क्या रखना है, x रखना है, यानी जैसे लिखा हुआ है xy belongs to r implies x minus y divided by n, इसी को ट्रांसफर यहाँ कर दीजिए, x belongs to r implies x minus x divided by n, ऐसा है। अब इसको हम मैथमेटिक्स दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि क्लियरली 0 डिविजिबल बाय n, 0 जो है किसी नंबर से डिविजिबल हो सकता है। आप जानते हैं
0 by n is equal to what? 0. This you know. This is the fact. इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो गया. We have proved the first statement. Tell me, is it clear? समझ गए? Yes, sir. हाँ, अब आप सेकंड में चलिए. इसको मिटा नहीं रहे क्योंकि इसी से मूव करना हमको है. अब आप सेकंड स्टेटमेंट में आ जाओ. आपका जो सेकंड प्रूफ कहा है वो कहा है यहाँ देखिए. अब आप समझ गए होंगे तरीका कैसे किया जाता है. सेकंड है प्रूफ करना है कि xy belongs to R implies yx belongs to R, but you will start one by one. पहले आप इसको लेंगे फिर आप इसको पहुंचा देंगे. कैसे पहुंचाएंगे देखिए. xy belongs to R. This implies अब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं n divides x minus y. शॉर्ट फॉर्म लिखे, भाषा को हम चेंज कर दिया. n divides x minus y. Just tell me, is it clear? समझ गया? Yes, sir. Yes. आराम से देखते चलो, कोई घबराहट नहीं है. ये तुम लोग 3 ही लोग हो. हम लोग क्लास में 50-50 बच्चों को कन्फ्यूज कर बैठे हैं. इसलिए आराम से देखना है क्योंकि हम लोगों को हमको तुम लोग का माइंड से ही बढ़ना है. और कोशिश कर रहे हैं. हमारा वादा है कि जो हम कॉन्सेप्ट देंगे उस कॉन्सेप्ट को अगर हटवा देंगे उसी समय, ताकि आपका माइंड से हटे नहीं. चलिए, xy belongs to R implies n divides x minus y. ध्यान रखिए, n divides x minus y. अब आपसे छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं. 2 डिवाइड जब 4 को करता है, समझ में आ रहा है? 2 यदि 4 को डिवाइड करेगा तो क्या 2 माइनस 4 को डिवाइड भी करेगा क्या? Say yes or no. Yes, sir. Minus 2 times. हाँ. Yes, sir. That means if 2 divides 4, 2 also Hello. divides minus 4. So the concept is here division. यहाँ डिवीजन Then का it- रिजल्ट नहीं पूछा है, सिर्फ Minus डिवीजन कर 4. डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है. चलिए यहाँ देखते हैं. This implies, इसी को लिख रहे हैं, हम चेंज नहीं करेंगे. We shall go on. n divides minus times y minus x. सिचुएशन को चेंज नहीं किया, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया. तो अब ये माइनस का लफड़ा नहीं है, सीधा आप कर सकते हैं. क्लियरली xy belongs to R implies yx belongs to R. This is also proved. अच्छा लग रहा है ना? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट में चलिए. एकदम मस्त. आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेप है करने का, इसलिए हम पूरे क्वेश्चन को आपको नियम से करके दिखा रहे हैं. So that when I will supply assignment, you can do very easily without any hesitation. Let us see. अब हम चलिए यहां से नंबर 3 की ओर. नंबर 3 को ऑब्जर्व कीजिए क्या कह रहा है. दिस नंबर 3 इज xy belongs, यहां पूरा पार्ट लीजिए यहां से. xy belongs to R and yz belongs to R. ये आपका गिवन कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है? इसको ध्यान रखना है. यदि सिचुएशन को अपने फेवर में करना है तब हम क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान सुनना है. थर्ड की सिचुएशन को अपने फेवर में करना है तो आपको एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाह रहे हैं. आर यू रेडी? आप लोग तैयार हो समझने के लिए? Yes, sir. हाँ, तो ये क्या एग्जांपल है वो आप जानते हो. ध्यान सुनना है.
यदि ए बी के बराबर है, ए और बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो क्या ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। माइंड में बैठ गया, यही करना है, ये वही है। पहले वाला का स्टेटमेंट क्या था? पहले वाला क्या था? x बिलोंग्स टू r। उदाहरण के लिए हर आदमी अपने आप से रिलेटेड होता है। यदि ये नहीं समझ में आया तो हम कहना चाहते हैं कि जेड हमारा क्या है? जेड हमारा सेट ऑफ इंटीजर है और ऑर्डर पेयर में क्या आएगा? जेड क्रॉस जेड। जेड क्रॉस जेड में क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे? 1 1 बनेगा, 2 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, यानी लाइक टर्म्स दोनों ऑर्डर पेयर में आते रहेंगे। फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री एक जैसा ही होगा। बात समझ में आया? अभी हम इसके बाद हम एक नया स्टेटमेंट की ओर जाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। एग्जांपल दे रहे हैं, सुनते चलिए। क्या बताया यहाँ पर इसके लिए कि यदि आप बराबर की भाषा में करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बराबर यहाँ शब्द नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप समझिए। यदि एक्स वाई हमारे पास आर का मेंबर है तो वाई एक्स भी आर का मेंबर होगा, ऐसा देख चुके हैं। थर्ड में चलिए कोई थर्ड में चलते हैं, कैसे करते हैं। लेट अस सी थर्ड। आफ्टर दैट आई विल गिव सम एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट अस सी। given xy belongs to R, yz xy belongs to R and yz belongs to R, ये कह रहा है। तो आप क्या करेंगे? देखिए आप क्या करेंगे। लेट अस सी। Since xy belongs to R, you write like this: 8 divides xy. Again, yz belongs to R implies n divides y minus z. xy जब R के मेंबर है तो n divides x minus y, yz यदि R के मेंबर है तो n divides y minus z। यहां तक समझ गया? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, यदि एक्स वाई आर के मेंबर है तो एन एक्स माइनस वाई के डिफरेंस को डिवाइड कर सकता है। इफ वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एन डिवाइड्स वाई माइनस जेड। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। 2 divides 5, 2 divides 8, also 2 divides 10। ये सही है कि नहीं है? 2 जो 8 को डिवाइड करता है या नहीं करता है? करता है। करता है। 2 10 को डिवाइड करता है? करता है। हाँ। अब आप क्या करोगे कि 2 जब डिवाइड करता है 8 को, 2 जब 10 को डिवाइड करता है तो 2 इनके सम को भी डिवाइड करेगा। बात समझ रहे हो? This implies 2 divides 8 plus 10, that is 18. Is it fact or not? ये सही है? यस सर। हाँ, ये छोटे छोटे जो लॉजिक्स हैं जो हम लोग छोटी क्लास से पढ़े थे उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, उसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। यदि नहीं बताया जाता तो हम जो करने वाले हैं आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो क्या कहेंगे अब इसको हम कि एन जब x माइनस वाई डिवाइड कर रहा है वही एन यदि y माइनस जेड को डिवाइड कर रहा है, सो द सेम एन then n also divides the sum of this x minus y plus y minus z. N divides x minus y plus y minus z. Now this is what n divides x minus y plus y
minus z plus y minus y is cancel. So n divides x minus z. बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. n divides x minus y, n divides y minus z, so n divides their sum also. इसको सिंप्लीफाई किया और इसको कर सकते और कर सकते नो प्रॉब्लम और लाइक दैट और तो n डिवाइड 6 माइनस j जब n डिवाइड 6 माइनस j इसका मतलब क्या हुआ we can have a conclusion here now that therefore xz belongs to R, xz belongs to R. बात समझ में आ गई आपको? तो कंक्लूजन दीजिए therefore xy belongs to R, yz belongs to R, this implies xz belongs to R. क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर गोइंग टू द हायर मैथमेटिक्स. चलिए ठीक है? क्लियर? Yes, sir. अब जिस के लिए इतना मेहनत कर रहे थे उसको हम हाईलाइट कर देते हैं. क्या हाईलाइट करते हैं? हमारा नया टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन. समझ गए? टाइप्स ऑफ रिलेशन, ध्यान रखिए. इसको दोबारा हम हाईलाइट करेंगे लेकिन पहले इसका नाम देते हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशन. धीरे धीरे हम आराम से हायर मैथमेटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशन. Since you are a student of JEE, so you must consult higher mathematics books of different author except from India. बाहर की किताब को भी कंसल्ट कर सकते हो क्योंकि पूरे विश्व में पढ़ाई होती है मैथमेटिक्स. हम नंबर थ्योरी में डिस्कस कर रहे हैं. इसका बुक का नाम है नंबर थ्योरी. इसका कहा जाता है मॉडर्न अलजेब्रा, राइट? दिस इज कमिंग अंडर द मॉडर्न अलजेब्रा. मॉडर्न अलजेब्रा. हम मॉडर्न अलजेब्रा की बात की ओर मूव कर रहे हैं. मॉडर्न अलजेब्रा में लिखने वाले हमारे भारत के बहुत बड़े अथर हुए हैं. यार वशिष्ठ की मॉडर्न अलजेब्रा की किताब है. उसके बाद में एम.एल. खन्ना की किताब है जिसको हम लोग पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है. तो बहुत सारे अथर हैं इंडिया के भी जो इस किताब को लिखे हैं. तो सब किताब को कंसल्ट कीजिए. आर.डी. शर्मा तो आपके फेसबुक की तरह चलता रहता है. बड़े बड़े क्वेश्चंस उसमें अलग अलग फॉर्म में दिए रहते हैं, अच्छी बात है. लेकिन जस्ट टू हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी यू शुड कंसल्ट सम अथराइज्ड बुक. अथराइज्ड बुक मींस पर्टिकुलर सिचुएशन. मॉडल में रख दिया. मॉडल अलजेब्रा किताब ढूंढेंगे मैथमेटिक्स की, वहां जाकर देखेंगे कि ये सारा चीज आपको नजर आ रहा है. वहां आपको सेट नजर आएगा, रिलेशन नजर आएगा, फंक्शन नजर आएगा, नंबर थ्योरी नजर आएगा, ग्रुप नजर आएगा, रिंग नजर आएगा. मैंने बहुत मैथमेटिक्स इसके अंदर में है. तो चलिए जैसे जैसे होगा आपको हम हाईलाइट करते चलेंगे. अब हम लोग मैथमेटिक्स की ओर ही ज्यादा मैथमेटिक्स की ओर में जा रहे हैं. जैसे क्या है टाइप ऑफ रिलेशन. समय धीरे धीरे होने चला, कोई बात नहीं. थोड़ा सा हम आज टाइप्स ऑफ रिलेशन लिख देते हैं. हम कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे. पहला क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन में है? पहला है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन.
ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इम्प्टी रिलेशन, इम्प्टी रिलेशन। थर्ड, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। नया नया नाम आपके सामने में आ रहा है। हम लोग भी जब विद्यार्थी थे, जब नई नई चीज आती थी बड़ा अच्छा लगता था, चलो नया चीज सीख रहे हैं, क्योंकि ये हंगर होना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव हंगर टुवर्ड्स लर्निंग। जब तक आप एक तरह से भूखे प्यासे की तरह नहीं विश्वास करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो नया नया नाम दे रहे हैं आपके नजर में, जिज्ञासा से हम लोग कर रहे हैं, खिचड़ी देखते हैं क्या है, कैसे है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिवियल रिलेशन, फिर आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आपका है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अंदर पार्ट इज equivalence relation, equivalence relation. So these are various types of relation in the condition. So can I explain this? Can I explain this or you shall see later? Hello. आप लोग सब सुन रहे हैं? प्राची, प्रियांशु, यस सर। थोड़ा सा समझा दे इसको हम। यस सर। चलिए, तो आपको हम 5 मिनट समय लेंगे, सिर्फ समझाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए एक एक समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आराम से समझते चलना है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, हम आज एक मैथड समझा देते हैं और कल डिस्कशन में शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सा फैक्ट आपको हम बता चुके हैं। अब जो एग्जांपल बता रहे हैं तो उसमें हर चीज दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब नाम देना है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? यदि रिलेशन ऐसा हो जो अपने आप से रिलेशन हो, सच रिलेशन in which every element is related to itself only. Such relation in which every element is related to itself only. अभी हम सिर्फ भाषा में दे रहे हैं, भाषा के बाद हम समझाएंगे कल। empty relation, there exists no element there exists no element in relation. Universal relation, a relation is said to be universal, that every element is related to every element of one set related to every element of the same set. माने every element of set A, ये नाम ज्यादा अच्छा रहा। Every element of set A is related to every element of, एक ही भाषा को हम कह दी 2 बार, यानी सेट ए यूनिवर्सल रिलेशन का ए क्रॉस ए होता है। ए का सारा एलिमेंट दूसरे ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट हो, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, सारे के सारे आ गए। जैसे यूनिवर्सल सेट आपको बताया था, यूनिवर्सल सेट बताया क्या था कि सच सेट हैविंग
all the elements of the set under consideration. ऐसा सेट जिसके अंदर का एलिमेंट वो होते हैं जो हमारे कंसिडर किए हुए एलिमेंट हैं, वो भाषा है every element of set A is related to every element of set A. कुछ बचा नहीं है. ट्रिवियल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और इन्वर्सल रिलेशन को मिला दिया जाए तो ये हमारा ट्रिवियल बनता है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्टी एंड इन्वर्सल रिलेशन. नेक्स्ट क्लास में आपको आराम से समझाएंगे, अभी खाली समझा दे रहे हैं इस तरह से. कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्टी एंड इन्वर्सल रिलेशन, यानी एम्प्टी रिलेशन और इन्वर्सल रिलेशन को यदि मिला दिया जाए तब वो हमारा ट्रिवियल रिलेशन बनता है. बहुत से भाषा, बहुत से स्टेट में आपको आएगा कि प्रूव दैट द रिलेशन इज ट्रिवियल, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉन ट्रिवियल. जैसे जैसे बातें आएंगी आपको समझाते चलेंगे. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है if every element of set A is related to itself. Every element of set A is related to itself. अभी थोड़ा देर के लिए आपको परेशानी हो रहा होगा कि आइडेंटिटी और एक जैसा ही लग रहा है. आप देख पा रहे हो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक जैसा लग रहा है. यस सर, लग रहा है. लग रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंस है. बताइए क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत पहले बताया आपको कि हम तर्क पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग लॉजिक. यहाँ कौन सा डिफरेंस है? कुछ तो अंतर है दोनों में लिखा हुआ, जरूर बताइए क्या अंतर है. बताइए. जल्दी बताइए, तब हम जान रहे हैं कि आप बिल्कुल ही क्या कहेगा, बहुत एक्टिव और बहुत ही सिंसियर लर्नर है. बताइए दोनों का अंतर बताओ, क्या अंतर है दोनों में? लास्ट वर्ड का डिफरेंस है. हायर फंडा है, ध्यान रखना है. नहीं पकड़ में आ रहा है? नो सर. भाषा देखिए, भाषा पकड़िए. भाषा क्या है? हम आपसे पूछ रहे हैं यू ओनली कम टू मी. आपसे हम पूछे यू ओनली कम टू मी. आप ग्रुप में बैठे हो, मान लेते हैं. सर ओनली का डिफरेंस है. हम बता रहे हैं, हमें प्रश्न आपसे पूछना है, यू ओनली कम टू मी. आपके मन में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं तो हमको इंडिकेट किया है सिर्फ हम ही आए हैं, सिर्फ हम ही आए. समझ गए? ये भाषा समझ में आ रहा है? यस सर. लेकिन दूसरी बात प्रश्न पूछे, यू कम टू मी, यू कम टू मी. दोनों भाषा है, एक जगह ओनली लगा है, दूसरी तरह कम टू मी. तो अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, जो बाकी साथी वो भी आ सकता है. आप तो आगे ही आओगे, लेकिन आपके बाकी साथी भी आ जाएंगे. बात समझ में आया है? यस सर. थोड़ा लॉजिक में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. ठीक है, आप चलिए. यहाँ फर्स्ट लॉजिक क्या है? सच रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. यहाँ ओनली रिलेटेड है, यानी यहाँ 1-1 ही होगा, 1-2 भी 2-2 ही होगा. लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कुछ और हो सकता है. यही अंतर दोनों में रहती है. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. यहाँ ओनली का डिफरेंस है. यहाँ क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. यहाँ बंधन नहीं है. यही दोनों का अंतर है, ध्यान रखिए. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बहुत लोगों को समझाने में दिक्कत होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन. तो हम कहेंगे क्या? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन
is a reflexive relation, but all reflexive relations are not identities. बात समझ में आया? हम बहुत पहले बताया कि हम एक मैथमेटिक्स लॉजिक पढ़ रहे हैं, लॉजिक में आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा. चलिए आगे चलते हैं, कल डिस्कस, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन अभी आप देखे थे, हम उसी भाषा को देते हैं. If AB belongs to R, this implies BA belongs to R. अभी आप प्रूव किए थे ना, वही चीज यहाँ आ गया. यदि AB R का मेंबर है तो BA भी R का मेंबर होगा. ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहा जाता है? एक AB belongs to R, comma BC belongs to R. This implies AC belongs to R. यदि AB R का मेंबर है, BC R का मेंबर है, AC भी R का मेंबर होगा. इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है? If relation is reflexive, शॉर्ट दे रहे हैं, symmetric and transitive, then it is equivalence relation. Is it clear? समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो ये आज आपको एक रफ पिक्चर दिया गया. इस रफ पिक्चर में आपको समझाया गया these relations satisfy all these rules. और बहुत इंपॉर्टेंट फंडा क्लियर किए, तो आप इसको बढ़िया से स्टडी करिए, पढ़ कर आइए, समझिए. नेक्स्ट क्लास में आई डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल, क्योंकि ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, लॉजिक को समझाने से होता है. तो आज क्लास को यही छोड़ रहे हैं. थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you.